Hello everyone, welcome to the new lecture of building construction and materials. In previous lecture we have studied about the causes of failure of foundation. Okay, so today we will move to the next topic, that is foundation on black cotton soil. Before starting this topic, you should have a knowledge about the black cotton soil. See, black cotton soil is considered to be the best soil for agriculture. For agriculture, it is considered to be the best soil. But when it comes to civil engineering or construction point of view, it is considered to be the worst soil. Why it is considered to be the worst soil? Because black cotton soil is having a very typical characteristic, that is shrinkage and swelling. Now, shrinkage and swelling are happen due to moisture movement. Okay, so when this soil comes in contact with water, it gets expanded. Okay, it gets expanded when water comes into this when water comes in contact with this kind of soil, it gets expanded. Similarly, when water removes, it get shrinked. Okay okay it gets shrinked. So shrinkage and swelling, these are the basic two characteristics of this kind of a soil. That's why it is very unpredictable soil. And when you can't predict anything about this soil, then it is considered to be the very dangerous soil, because we can't predict what will happen. Okay, suppose we made a foundation on black cotton soil, suddenly rainfall happens, and the water when penetrate into the soil, then what will happen? The particle of soil will get expand, and when it will expand, the volume will increase, and it will cause problem to the structure. Okay, so this is the characteristics of this soil. I'll show you one image of black cotton soil. See, as you can see in front of your screen, this is the image of black cotton soil. Okay, this soil is called as black cotton soil. It has a very good property as far as the agriculture point of view is concerned. Okay, so this is the image of black cotton soil. It is considered to be the worst soil for construction point of view. Okay, because of its typical characteristics of swelling and shrinkage. ठीक है, so ये इसकी इमेज है ब्लैक कॉटन सॉइल की. समझ गए? चलिए ठीक है, अभी मैं आपको और इसमें एक डिटेल दे देता हूँ. देखिए, ब्लैक कॉटन सॉइल जो है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से तो सबसे खराब अच्छा है, लेकिन सबसे खराब कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से. ये इसीलिए है क्योंकि इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स, श्रिंकेज और स्वेलिंग. ठीक है, श्रिंकेज और स्वेलिंग होना. श्रिंकेज और स्वेलिंग क्यों होती है? मॉइस्चर मूवमेंट की वजह से. इसका मतलब जब इसके कांटेक्ट में वाटर आता है ना, जब इसके कांटेक्ट में वाटर आता है तो इसमें स्वेलिंग और श्रिंकेज होता है. ठीक है ना, जैसे कि इसका एक एग्जांपल आपको बस बता दूं. जैसे कि ये ग्राउंड लेवल है और ये हमारा फाउंडेशन. ठीक है, अब यहाँ पे पूरा सराउंडिंग सॉइल है. अज्यूम कीजिए कि ये पूरा सॉइल ब्लैक कॉटन सॉइल है. ठीक है, सपोज दिस surrounding soil and the soil beneath this footing is a black cotton soil. So what will happen? Whenever rainfall happens, then the water get penetrated into the soil. ठीक है ना, जब भी रेनफॉल होगा तो क्या होगा? वाटर जो है यहाँ पे स्टैग्नेटेड रहेगा. ठीक है ना, यहाँ पे जमा हुआ रहेगा इस तरीके से, और स्लोली स्लोली वाटर क्या करेगा? पेनिट्रेट करेगा. पेनिट्रेट करते करते वो क्या हो जाएगा? पूरा सराउंडिंग में, और अल्टीमेटली वो नीचे पेनिट्रेट होके वाटर आ जाएगा. ठीक है, जब वाटर इस पार्ट में आ जाएगा स्पेशली, तो क्या होगा? ये पूरा ब्लैक कॉटन सॉइल है. ठीक है ना, अब ब्लैक कॉटन सॉइल की स्पेशलिटी क्या है? देखिए यहाँ पे, ड्यूरिंग रेनी सीजन मॉइस्चर पेनेट्रेट इनटू द सॉइल ड्यू टू विच दे स्वेल. अब क्या होगा? जब मॉइस्चर इसमें पेनेट्रेट हो जाएगा तो पार्टिकल और वाटर का जब कांटेक्ट होगा सॉइल पार्टिकल का, तो वो क्या होगा? स्वेलिंग हो जाएगी उसमें. ठीक है ना, स्वेलिंग हो जाएगी मतलब उसका साइज भी इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है ना, स्वेलिंग हो जाएगी, साइज इंक्रीज हो जाएगा. इसका जो शेप होता है ब्लैक कॉटन सॉइल के पार्टिकल्स का, वो कुछ इस तरीके से होता है. इस तरीके से होते हैं, प्लेटलेट फॉर्म में होते हैं. इस तरीके से शेप होता है. तो जब इसमें कांटेक्ट में वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो ये पूरा सराउंडिंग इस तरीके से बना लेते हैं. ठीक है ना, इस तरीके से, यानी कि देखिए उनका वॉल्यूम बढ़ गया. इस फॉर्म में होते हैं. जब वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो इस तरीके से स्वेल हो जाते हैं. फिर क्या होता है?
Most of the fine grain clays including black cotton soil have their grains which is more or less in form of platelet. इसको बोलते हैं platelet form, इसको बोलते हैं sheet या platelet form, and their grains are not round when moisture enter between the platelet and some hydrostatic pressure the particles separate out. ठीक है ना, कई दफ़ा इस तरीके से स्वेल हो जाते हैं, और कई दफ़ा एक और चीज़ होती है, कई बार इसमें जब वाटर कांटेक्ट में आता है तो छोटे छोटे पार्टिकल में ये इस तरीके से डिवाइड हो जाते हैं। ये जो प्लेटलेट है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में भी डिवाइड हो जाते हैं, इस तरीके से बहुत सारे इसमें से पार्टिकल भी निकल जाते हैं, कई दफ़ा इस तरीके से राउंड भी हो जाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, इसका दिस इंक्रीज द वॉल्यूम कॉमनली नोन एज स्वेलिंग। ठीक है ना, इसमें फिर क्या होगा, वो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, अगर उसका स्वेलिंग बढ़ गई तो मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर जो पार्ट इसका जो वॉल्यूम है सॉइल का, अगर ये सडनली इंक्रीज होगा थोड़ा सा, क्या होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर इंक्रीज होगा तो एक चीज़ याद रखेंगे, फुटिंग का मूवमेंट अपवर्ड भी हो सकता है या डाउनवर्ड भी हो सकता है। ये जो फुटिंग है ये अपवर्ड मूवमेंट भी हो सकता है, डाउनवर्ड मूवमेंट भी हो सकता है। इसलिए वाटर जब कांटेक्ट में आएगा यानी कि फुटिंग में मूवमेंट हो जाएगा, फाउंडेशन का हल्का फुल्का सा मूवमेंट होगा। जब फाउंडेशन अपनी हल्का फुल्का सा मूवमेंट होगा तो क्रैक कहाँ पे आएंगे, स्ट्रक्चर में आएंगे। फाउंडेशन अपनी जगह से हल्का सा भी डिसलोकेट होता है तो क्रैक्स आ जाते हैं बिल्डिंग में। इसलिए ब्लैक कॉटन सॉइल को डेंजरस माना जाता है क्योंकि बहुत ही अनइवन सॉइल है, एक्सपांसिव सॉइल है, जब वाटर के कॉन्टैक्ट में आता है तो एक्सपांड हो जाता है। ठीक है ना, इसलिए इसको डेंजरस सॉइल माना जाता है। अब सपोज ये तो इसकी हुई स्वेलिंग की बात, अब अज्यूम कीजिए कि बारिश के रेनी सीजन के बाद, ठीक है ना, उसके बाद जो वाटर एक्यूमुलेटेड था, अगर सपोज समर सीजन आता है, स्पेशली समर सीजन में यहाँ पे जो वाटर एक्यूमुलेटेड होता है पार्टिकल में, सडनली क्या होगा, वो वाटर या मॉइस्चर उसमें से रिमूव हो जाएगा, मूव्स आउट फ्रॉम द सॉइल। तब क्या होगा, देखिए यहाँ पे ड्यूरिंग समर सीजन मॉइस्चर मूव्स आउट फ्रॉम सॉइल एंड कॉन्सिक्वेंटली द सॉइल श्रिंक्स। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली द सॉइल श्रिंक्स, यहाँ पे क्या होगा, श्रिंकेज हो जाएगा। श्रिंकेज मतलब हिंदी में हम उसको बोलेंगे तो सुकड़ जाएगा। यानी कि अगर इसका शेप फॉर एग्जांपल इस तरीके से था, एक जस्ट एग्जांपल देता हूँ मैं, अगर स्वेलिंग के बाद उसका शेप इस तरीके से था, जब इसमें से वाटर रिमूव हो जाएगा तो एकदम से इसका शेप कम हो जाएगा। ठीक है ना, इसके अंदर जो वाटर की वजह से स्वेल हो गया था, अब जब इसमें से वाटर रिमूव हो जाएगा स्पेशली समर सीजन में, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ये जो पार्टिकल है उसका साइज रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से ये श्रिंकेज में हो जाता है इसमें। ठीक है ना, अब श्रिंकेज हो गया, सपोज श्रिंकेज इज मोर डेंजरस देन स्वेलिंग। जब श्रिंकेज हो गया, देखिए यहाँ पे दिस श्रिंकेज क्रैक समटाइम्स आल्सो नोन एज टेंशन क्रैक। इसमें क्या हो जाता है कि जब श्रिंकेज हो जाता है तो इस तरीके से काफ़ी वाइड इस तरीके से यहाँ पर क्रैक डेवलप हो जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे इस तरीके से सराउंडिंग में क्या हो जाते हैं, क्रैक्स, इस तरीके से क्रैक्स के फॉर्म में आपको दिखेंगे। इस तरीके से क्रैक्स आ जाते हैं, नीचे भी हल्के फुल्के से इस तरीके से कम विड्थ के थोड़े से क्रैक्स आ जाते हैं, इस तरीके से क्रैक्स आ जाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्रैक का जो साइज़ है वो 10 to 15 सेंटीमीटर होता है। ये ग्राउंड सरफेस पे भी होते हैं और नीचे भी होते हैं समटाइम। दिस क्रैक रिजल्ट इन लॉस ऑफ सपोर्ट बीनीथ द फुटिंग। अब सोचिए यहाँ पे कि यहाँ पे जो पार्टिकल कॉम्पैक्टेड था, सडनली यहाँ पे गैप आ गई। गैप आ गई तो ये जो ऊपर का सॉइल है ये गैप को फिल करने के लिए नीचे आएगा, तो सडनली सॉइल जब नीचे आएगा तो बाकी सॉइल भी उसके नीचे आएंगे क्योंकि गैप कम होती जाएगी, खाली होते जाएगा। तो सिमिलरली फुटिंग क्या होगी, फिर थोड़ा सा नीचे आ जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग, जैसे कि यहाँ पे एक सडनली क्रैक आ गया, ये इसकी वेट है कुछ 10 to 15 सेंटीमीटर। अब इस गैप को तो फिल कर रहे हैं ये ऑटोमेटिक, क्योंकि ऊपर वाला सॉइल नीचे आएगा गैप को फिल करने के लिए, तो ऊपर वाला सॉइल नीचे आएगा तो फिर ऊपर की जगह खाली होगी, फिर ऊपर वाला उसके नीचे आएगा। इस तरीके से गैप फिल करते करते जब यहाँ पे गैप कम हो जाएगी जस्ट फुटिंग के नीचे, तो फुटिंग हल्का सा नीचे आ जाएगी, है कि नहीं, हल्का सा फुटिंग थोड़ा सा सेटलमेंट हो जाएगा फुटिंग में। ठीक है, तो ये होगा इसमें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोई एग्जाम्पल एक और देखिए यहाँ पे, दिस क्रैक रिजल्ट इन लॉस ऑफ सपोर्ट बीनीथ द फुटिंग रिजल्टिंग इन हाई सेटलमेंट। ठीक है ना, ये सेटलमेंट लिखा है, हाई सेटलमेंट, सम एक्सपांसिव एंड श्रिंकेज सॉइल स्टिक टू द फुटिंग बेस एंड पुल द फुटिंग डाउन व्हेन दे श्रिंक, द रिजल्ट इन हॉरिजॉन्टल क्रैक इन द वॉल एंड फ्लेक्सिबल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर। अब क्या होगा, ये जब फुटिंग नीचे की तरफ मूव होगी, ठीक है ना, फुटिंग क्या हो जाएगी, फिर नीचे की तरफ मूव हो जाएगी। ठीक है, ये जो फुटिंग है ये नीचे की तरफ मूव हो जाएगी, इस तरीके से इसका डाउनवर्ड मूवमेंट होगा पक्का, इसमें इसमें तो सिर्फ डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। ठीक है,
जब श्रिंकेज होगा तो फुटिंग नीचे की तरफ आएगी। जब फुटिंग नीचे की तरफ आएगी तो क्या होगा, क्रैक कहाँ पे आएंगे, वॉल में, स्ट्रक्चर में क्रैक आ जाएंगे। क्योंकि जब फुटिंग डिसलोकेट होती है तो जो वॉल में क्रैक आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऊपर के स्ट्रक्चर पे असर पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से ये जो सॉइल है इस तरीके से काम करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे black cotton soil and other expansive soil are dangerous due to their shrinkage and swelling characteristics. In addition to this soil have very poor bearing capacity. देखिए पहली चीज़ तो इसकी श्रिंकेज और स्वेलिंग का प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़, ये बहुत ही इसकी कम क्या चीज़ है, बियरिंग कैपेसिटी। कल ही हमने देखे थे बियरिंग कैपेसिटी, कल हमने जो देखे थे बियरिंग कैपेसिटी, इसकी बियरिंग कैपेसिटी बहुत ही कम होती है। कितनी होती है, 50 to 100। कल मैंने जो आपको बताया था उसमें 130 से 150 था एज पर इंडियन नेशनल कोड। बट यूजुअली जो साइड पे माना गया है कि इसकी जो स्ट्रेंथ हम कंसिडर करते हैं बियरिंग पावर, वो 50 से 100 के बीच में। ठीक है, 50 से लेके 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी बियरिंग कैपेसिटी है, जो कि काफ़ी कम मानी जाती है। ठीक है, इसका मतलब कि सॉइल भी वीक है और इसके साथ साथ इसमें प्रॉब्लम भी है। बट अनफॉर्चुनेटली ये सॉइल, अगर आप कोई प्लॉट खरीदोगे वहाँ पे ब्लैक कॉटन सॉइल है, अगर आप ये सोच के तो प्लॉट नहीं खरीदोगे वहाँ ब्लैक कॉटन सॉइल है या कौन सा सॉइल है, आप प्लॉट खरीद लोगे, कंस्ट्रक्शन के बाद तो आपको पता चलेगा। पहले ही हम टेस्ट करके ऐसा तो नहीं कर सकते, है ना, कि स्ट्रक्चर के लिए हम प्लॉट छोड़ दें। तो अनफॉर्चुनेटली विदर्भ एरिया में, स्पेशली नागपुर रीजन में, ब्लैक कॉटन सॉइल ही अवेलेबल। इसलिए हमारे यहाँ जब फाउंडेशन बनाए जाते हैं तो इसकी प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ये सॉइल इतना डेंजरस है फिर भी कैसा इस पे कंस्ट्रक्शन हो जाता है, तो इसके कुछ प्रिकॉशंस होते हैं। जब वहाँ पे सॉइल प्रेजेंट है ब्लैक कॉटन, तो हमको कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, फाउंडेशन को थोड़ा सा चेंज करके बनाना पड़ता है। वो सारी चीज़ें हम अभी देखेंगे कि फाउंडेशन में किस तरह चेंज करेंगे, क्या करेंगे। ठीक है, तो आपको इसके डिसएडवांटेज समझ में आ गए। अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे याद रखेंगे इसकी बियरिंग कैपेसिटी सिर्फ 50 से 100 है। इन डिजाइनिंग फुटिंग ऑन दिस सॉइल द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड। ठीक है, जब कोई भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर फुटिंग को डिज़ाइन करेगा ब्लैक कॉटन सॉइल में, तो उसे इन पॉइंट्स पे, जो अभी हम डिस्कस करेंगे आगे, इस पॉइंट को ध्यान में रख कर, इस पॉइंट को माइंड में रख कर ही उसके फुटिंग को डिज़ाइन करना है। ठीक है, ये कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स है जो बहुत ज़रूरी है लेना। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स है। फर्स्ट, सबसे पहला पॉइंट है, द सेफ बियरिंग कैपेसिटी शुड बी प्रॉपरली डिटरमाइंड taking into account the effect of sustained loading, the long-term effect of loading resulting slow consolidation. In absence of test, the bearing capacity of the soil may be limited to 50 to 100. अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, जब भी एक हम किसी भी फाउंडेशन को बनाते हैं तो सॉइल की टेस्टिंग की जाती है बनाने के पहले। ठीक है ना, बहुत सारे टेस्ट है, आप अभी जीटी में पढ़ोगे ही, बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है ना, लोड भी है, आप प्लेट लोड टेस्ट होता है, कंसोलिडेशन टेस्ट होते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। वो टेस्ट किए जाते हैं क्या निकालने के लिए, बियरिंग कैपेसिटी, सेफ बियरिंग कैपेसिटी। तो हमको ये टेस्ट करते वक्त बियरिंग कैपेसिटी को निकाल लेना है। ठीक है ना, क्योंकि क्या होता है, कंसोलिडेशन जो होता है, कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, ये जो बिल्डिंग का फाउंडेशन है ये सालों तक के क्या होगा, इसमें सेटलमेंट होगा। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, सेटलमेंट होता रहेगा। ठीक है, सेटलमेंट होने को बोलते हैं कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन होते रहता है, बहुत स्लोली होता है। ठीक है ना, जिसकी वजह से क्रैक्स वगैरह आ सकते हैं। इसलिए इसको हमको बहुत केयरफुली इसकी सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकालनी पड़ती है। सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकाल लेने के बाद आपको उस पर स्ट्रक्चर को बनाना पड़ता है। ठीक है ना, जब एक बार आपके पास एसबीसी आ गई तो जब फुटिंग की डिज़ाइन करते हैं तो उसमें एसबीसी का यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, फुटिंग का जब डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हम एसबीसी का यूज़ करते हैं, उसके हिसाब से हम फुटिंग को निकालते हैं। ठीक है, ठीक है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेफ बियरिंग एसबीसी का फॉर्मूला क्या होता है, लोड अपॉन एरिया। ठीक है, जैसे आपने एसबीसी जो है, ठीक है ना, एसबीसी का जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो होता है हमारा लोड अपॉन एरिया। ठीक है, जैसे हम, ठीक है, एल बाय, ठीक है, लोड अपॉन एरिया। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर लिख दूँ आप लोगों के लिए, लोड अपॉन एरिया। ठीक है, ये होता है हमारा, इट इज इक्वल टू एस बी सी। एस बी सी मतलब सेफ बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए,
कि अगर आपको एसबीसी निकालना है या एसबीसी आपके पास है, तो हमारे पास लोड होता है, तो हम डिवाइड बाय एसबीसी इधर आ जाएगा, तो हम एरिया निकाल सकते हैं फुटिंग का। ठीक है, इस तरीके से एसबीसी जो चीज़ है वो हमारे पास पहले से होती है, हम एसबीसी निकाल सकते हैं। तो अगर आपके पास एसबीसी और लोड हमारे पास होता है, स्ट्रक्चरल लोड हमारे पास होता है, तो स्ट्रक्चरल लोड डिवाइड बाय एसबीसी, यानी कि आप एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, एसबीसी आप एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम फुटिंग का डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? द फाउंडेशन शुड बी टेकन एटलीस्ट 50 सेंटीमीटर लोअर देन द डेप्थ ऑफ मॉइस्चर मूवमेंट, दिस डेप्थ शुड बी मच मोर देन द डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक। अब इसमें क्या होता है, कई दफ़ा जैसे कि ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल्स के कुछ डेप्थ तक के ही क्या होता है, एसबी ये ब्लैक कॉटन सॉइल होता है। ठीक है, या फिर टेंशन क्रैक डेवलप इसके यहाँ तक के होते हैं जब श्रिंकेज होता है। तो ये जो टेंशन क्रैक डेवलप हो रहे हैं, इसके हमको नीचे तक के फुटिंग को लेके जाना है। ठीक है, टेंशन क्रैक जो हो रहे हैं इसके नीचे तक फुटिंग को लेके आना है। ठीक है ना, और जनरली जो फुटिंग है शुड बी 50 सेंटीमीटर लोअर। ठीक है ना, ये जो क्रैक हो रहे हैं इनसे कम से कम 50 सेंटीमीटर नीचे फुटिंग को डिज़ाइन करना, ये भी एक इसका प्रिकॉशन है। उसके अलावा एक चीज़ देख लीजिए, देखिए यहाँ पे थर्ड point, where there is a soil occurs in only in top layer and where thickness of soil layer does not exceed 1 to 1.5 meter, the entire black cotton soil should be removed and the foundation should be laid on non shrinkable soil. For example, जैसे कि ये ग्राउंड लेवल है हमारा, ठीक है, ग्राउंड लेवल से इस लेवल तक के ही सपोज हमारे पास ये इतना ही ब्लैक कॉटन सॉइल है 1 to 1.5 मीटर। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा 1 to 1.5 मीटर का ये जो पूरी डेप्थ का है, इसको निकाल के कहीं डिस्पोज कर देंगे कहीं पर, इसे दूसरी जगह हम शिफ्ट कर देंगे पूरे सॉइल को। ठीक है, ये भी एक इसका प्रिकॉशनरी मेजर। अगर इतना कम है तो हम इसको पूरा, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिक हमारा जो स्ट्रक्चर का कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, इसलिए उससे बेहतर है कि हम ये पूरे को रिमूव कर दें यहाँ से। ये भी एक इसका प्रिकॉशनरी मेजर। ठीक है, उसके अलावा वेयर द डेप्थ ऑफ क्ले लेयर is large, the foundation of footing should be prevented from coming in contact with the soil. This can be done by excavating wider and deeper foundation trench, ठीक है ना, interposing of sand murum around the footing। इसमें क्या होता है, देखिए जब सपोज ये 1.5 मीटर से भी बहुत ज़्यादा है, तो इसमें क्या करते हैं हम, एक चीज़ यहाँ पे करेंगे, इसमें फाउंडेशन के सराउंडिंग में, इसका एक इमेज मैं आपको दिखा देता हूँ। फाउंडेशन के सराउंडिंग में इस तरीके से पूरा सैंड और मुरूम का लेयर बना देते हैं। तो अब देखेंगे आप कि ब्लैक कॉटन सॉइल तो इस पार्ट में हो गया, ये जो एरिया है एक, ठीक है ना, ये एरिया पूरा सराउंडिंग में हम क्या करते हैं, सैंड और मुरूम को फिल करते हैं, ताकि जो फुटिंग के कांटेक्ट में ब्लैक कॉटन सॉइल ना रहे। ये भी इसका एक मेजर है, ठीक है ना, बनाते वक्त। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पे, वेयर द सॉइल इज हाईली एक्सपेंसिव, इट इज़ वेरी essential to have minimum contact between soil and footing. This can be achieved by transmitting the load through deep piles or piers or by supporting wall through capping beam which is kept some distance of 5 to 15 centimeter above the ground surface. This permit free expansion of the soil. एक और मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, जो कि आप लोग पढ़ चुके हो पहले भी, सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है वो है हमारा ये वाला, इसको अंडर रिंग पाइल फाउंडेशन बोलते हैं, जो कि सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है, अंडर रिंग पाइल फाउंडेशन भी एक एग्जांपल है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे पियर, ये भी हम पढ़ चुके हैं फाउंडेशन के टाइप में। अंडर रिम पियर मैंने बताया था कि ब्लैक कॉटन के लिए सबसे अच्छा है। ठीक है, इस तरीके से पियर बना देना, या फिर अंडर रिम पाइल फाउंडेशन हमने देखे थे कि इतना पाइल की डेप्थ है और ये एक बल्ब बना देते हैं। याद करिए, हमने इसको पढ़ चुके हैं, किसी को इसके बारे में पढ़ना है तो फाउंडेशन का डी फाउंडेशन का पार्ट है, ठीक है, वो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। तो ये फाउंडेशन बनाना उसमें भी बहुत कारगर साबित होता है। ठीक है, इसके अलावा where the bearing capacity of soil is poor or soil is very soft, the bed of foundation trench should be made firm or hard by ramming मुरूम और बलास्ट। ये अभी मैंने आपको बताया, पूरा सराउंडिंग में मुरूम या सैंड या बलास्ट का लेयर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके अलावा the foundation should be constructed during dry season. Also suitable plinth protection should be provided on external wall, should be made on the ground surface with its slope away from the wall so that moisture does not penetrate into the foundation. इसका एक एग्जांपल मैंने भी आपको कल भी बताया था। क्या करते हैं हम, इस सराउंडिंग में क्या करते हैं हम, स्लोप अवे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से स्लोप, तो जब रेनफॉल होगी तो वाटर यहाँ पे एक्यूमुलेट नहीं होगा, वो
डिस्पोज हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक इसका मेथड है। ठीक है, तो ये कुछ ब्लैक कॉटन सॉइल के मेजर्स है। ठीक है ना, ये मेजर्स आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा कौन कौन से फाउंडेशन हम ब्लैक कॉटन सॉइल पे बना सकते हैं। ठीक है, ये बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो इसमें मैं आपको सीधा इमेज के जरिए बताता हूँ। सबसे पहले देखो, ये एक सिंगल फुटिंग है। ठीक है ना, सिंगल फुटिंग दिख रही है आपको। हम क्या कर सकते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ब्लैक कॉटन सॉइल पे फाउंडेशन को, जो हमारा फुटिंग है उससे 30 सेंटीमीटर राइट साइड, 30 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड और नीचे 60 सेंटीमीटर का एक पूरा सैंड का लेयर भरते हैं। ठीक है, ये पूरा सैंड का लेयर, और ऊपर से यहाँ पे स्टोन से प्लिन का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वाटर इसमें एंटर भी नहीं होगा और सराउंडिंग पूरा ब्लैक कॉटन रहेगा, लेकिन फिर भी जो कांटेक्ट में रहेगा फाउंडेशन के वो सैंड रहेगा, ब्लैक कॉटन सॉइल नहीं रहेगा। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड एक और है जो कि और स्ट्रॉन्ग बना देता है। इसमें हम क्या करते हैं, सैंड है, फिर एक मुरूम का लेयर प्रोवाइड करते हैं, फिर सैंड, एक मुरूम का लेयर। इस तरीके से इसकी पूरी पैकिंग की जाती है। अल्टरनेट सैंड और मुरम का लेयर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये भी एक मेथड है। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स है इसके फाउंडेशन के। इसके अलावा बहुत अल्टरनेट इसके बहुत सारे मेथड है। देखिए, पूरा सैंड, फिर एक और मुरूम और सैंड वाला। ठीक है, कई दफ़ा एक मुरूम और बलास्ट का पूरा लेयर प्रोवाइड करते हैं। बहुत अलग अलग इसके मेथड्स हैं। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे एक और बताया मैंने कि पियर फाउंडेशन प्रोवाइड कर सकते हैं हम। ठीक है, मैं फाउंडेशन के बारे में आपको डिटेल में पूरा पढ़ा चुका हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कहाँ अप्लाई करना है। जैसे अंडर रिम हम पूरा पढ़ चुके हैं। अंडर रिम फाउंडेशन इज ऑल्सो वेरी बेस्ट एग्जाम्पल फॉर ब्लैक कॉटन सॉइल। ये भी बहुत बेहतरीन किस्म का एक फाउंडेशन है, स्पेशली जो ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए। ठीक है, इसमें बल्ब की वजह से क्या होता है, मॉइस्चर मूवमेंट रुक जाता है। ठीक है ना, सॉइल अपनी जगह से फाउंडेशन को कहीं पर भी डिसलोकेट नहीं कर पाता, फाउंडेशन फिक्स हो जाता है, ये बल्ब की वजह से। डबल बल्ब है तो और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। ठीक है, हमें पढ़े थे पहले भी। ठीक है, तो ये था हमारा फाउंडेशन के ब्लैक कॉटन सॉइल के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं जो कि हमारा है फाउंडेशन ट्रेंच के बारे में। नेक्स्ट चीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज सेटिंग आउट ऑफ फाउंडेशन ट्रेंचेस। देखिए, ये इतना आपके सिलेबस में इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, बट फिर भी मैं इसको शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए आपने हमेशा देखे होंगे फाउंडेशन प्लान बनाया जाता है। जैसे कि आपको ये दो रूम दिख रहे हैं ना, ये दो रूम में यहाँ पे पूरी वॉल आएगी। ठीक है, ये पूरी वॉल आएगी। ठीक है, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, आपका बोल सकते हैं लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर का। ये पूरा फाउंडेशन जो है वॉल का फाउंडेशन है। ठीक है, ये पूरे इसमें फाउंडेशन का ट्रेंच है। अब ये इतना पढ़ने का कोई मीनिंग नहीं है, मैं आपको इसका शॉर्ट में बताता हूँ। ठीक है, डायग्राम के जरिए। देखिए, आप पूरी थ्योरी लिखी हुई है, जो थ्योरी वहाँ लिखी है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले अज्यूम कीजिए कि आपको यहाँ पे पूरे एक्सकेवेट करना है। ये पूरा पार्ट जो है ना, दिख रहा है ना, ये पूरा एक्सकेवेट करना है। फिर इसके बाद इसके ऊपर फाउंडेशन आएगा। ठीक है ना, वॉल का फाउंडेशन आएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, सेटिंग आउट ऑफ फाउंडेशन ट्रेंचेस में क्या होता है। सबसे पहले समझिए कि ट्रेंचेस क्या होते हैं। ये जो एक्सकेवेटेड जो वाइट ट्रेंच दिख रहा है आपको, ठीक है ना, ये जो इस तरह के जो दिख रहा है इतना जो पार्ट है, ठीक है ना, इसको बेस्ट में अगर जो आप देख रहे हैं इतना पार्ट, ठीक है ना, ये जो इतना पार्ट आपको दिख रहा है, ये एक तरह का फाउंडेशन का ट्रेंच है ना, ये जो पार्ट है। इसमें एक्सकेवेशन होगा, डिग करेंगे हम इसको, पूरा पूरा सॉइल रिमूव कर देंगे एक पर्टिकुलर डेप्थ तक के, और इसके ऊपर फाउंडेशन आएगा। तो इस पार्ट को बोलेंगे एक ट्रेंच। फिर ये भी एक ट्रेंच हो गया, ये भी एक ट्रेंच हो गया। तो ये फाउंडेशन के ट्रेंचेस, ठीक है, ये फाउंडेशन के ट्रेंचेस हो गए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, आपको इसमें एक्सकेवेट करना है, बट एक्सकेवेट करने के पहले आपको क्या करना पड़ता है, मार्किंग करना पड़ता है। आपने देखे होंगे ना, लाइन से मार्किंग की जाती है। तो ये पूरा का आपको मार्किंग करना है। वहाँ पे हम मार्क कर देते हैं कि कितना पार्ट हमको रिमूव करना है सॉइल पे। जैसे कि ये मार्किंग करेंगे तो ये इतना पूरा यहाँ पे लाइम आएगा, पूरा इस तरीके से लाइम आएगा, फिर ये पूरा लाइम से पूरा कवर हो जाएगा। तो ये जो पार्ट है जिसको रिमूव करना है, पूरा लाइम से इसको बाउंड्री इसकी मार्क कर देंगे। अब इसको मार्क करने का जो है, इसको बोलते हैं सेटिंग आउट ऑफ ट्रेंच। तो सबसे पहले हम मार्किंग के लिए क्या करते हैं, सेंटर लाइन मार्क करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेंटर लाइन मार्क करते हैं। ठीक है, सेंटर लाइन मार्क करने के बाद ये आखिरी में क्या करते हैं, हम लाइन डोरी लगा देते हैं। एक तरह का स्ट्रिंग होता है, ठीक है, इस तरह का स्ट्रिंग होता है जो कि ज्वाइन करता है ये पॉइंट से ये पॉइंट। सबसे पहले अज्यूम कीजिए कि हमने यहाँ पे एक लाइन डोरी मार्क कर दी है। ठीक है, लाइन डोरी से इसको स्ट्रेच करके रखें। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक तरीके से जो इससे आपके लाइन से पूरा मार्क कर देंगे। सबसे पहले सेंटर लाइन मार्क कर दी,
सेंटर लाइन मार्क करने के बाद जितनी आपकी फाउंडेशन ट्रेंच की विड्थ है, फॉर एग्जांपल अगर इसकी विड्थ 1 मीटर है तो यहाँ से 0.5 इसको मार्क करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक वुडन पैग लगा देंगे। ठीक है, वुडन पैग लगा देंगे, एक लकड़ी का टुकड़ा यहाँ पे फिक्स कर देंगे। फिर इसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में हम 0.5 मीटर का मार्क करेंगे। फिर इसके भी लेफ्ट साइड में 0.5 का मार्क करके फिर लाइन डोरी को स्ट्रेच करेंगे। ठीक है ना, और उसके नीचे आपके लाइन से पूरी इसको भी मार्क कर देंगे। फिर ये भी मार्किंग हो गई, ये भी मार्किंग हो गई। अब मार्किंग बाउंड्रीज की हो गई तो हम फिर इसको पूरा रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है सेटिंग ऑफ ट्रेंचेस। ठीक है ना। अब दूसरी चीज़, इसमें एग्जैक्टली परपेंडिकुलर कैसा लेंगे हम। ठीक है, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर इसको कैसा मार्क करेंगे, इसका परपेंडिकुलर, उसके लिए हम यूज़ करते हैं 3 4 5। ठीक है ना, 3 4 5 मेथड बोलते हैं ट्राइंगल का। इसमें क्या होता है देखिए, इसका मैं आपको एक एग्जांपल ही बताता हूँ। इसमें देखिए क्या होता है, देखिए 3 4 5 मेथड क्या होता है। देखो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हमने ये बेस लाइन मार्क कर दिया, अब हमको इसका परपेंडिकुलर वाली सेंटर लाइन मार्क करना है। तो एग्जैक्ट परपेंडिकुलर लेने के लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा 3 4 5 मेथड। जैसे कि 3 4 5 मेथड मतलब ये हो गया हमारा 3। ठीक है, ये हमारा हो गया 4 और ये हो गया हमारा 5। ठीक है, दिस इज अवर 5। ठीक है, तो ये क्या होगा, 3 4 5 मेथड का यूज़ करके हम यहाँ पे एक, जैसे कोई भी एक वर्क लेबर को यहाँ खड़े रखेंगे। फिर एकदम स्ट्रेट लाइन में जो हमने मार्क किए, लेबर एक टेप को पकड़ के रखेगा 4 मीटर तक के। ठीक है, 4 मीटर तक के उसने टेप को पकड़ के रखा। ठीक है, सिमिलरली फिर उसके बाद क्या होगा, हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 मीटर आगे जाके इस तरीके से पकड़ेंगे। एक 3 मीटर पे यहाँ पे एक लेबर खड़ा रहेगा। फिर हम एग्जैक्टली मैच करेंगे कि 5 मीटर कितनी दूरी पर आ रहा है, और 5 मीटर एग्जैक्टली 5 मीटर पे ये लाइन, ये जो लाइन है स्ट्रेट 5 मीटर आ रही है कि नहीं। ठीक है, इस तरीके से हम 3 4 5 मेथड का यूज़ करके इस परपेंडिकुलर लाइन को मार्क कर लेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं 3 4 5 मेथड। ठीक है, एकदम परपेंडिकुलर इसको मार्क करने के लिए। ठीक है, ये 3 मीटर एग्जैक्ट आपका आना चाहिए। ठीक है, वर्टिकल। अगर एग्जैक्ट 3 मीटर लाइन पे आ रहा है, किस लाइन पे आ रहा है एक्यूरेट, वहाँ पे फिर कोई बंदा खड़ा रहेगा और उस लाइन को हम फिर स्ट्रेट मार्क कर लेंगे इसको। ठीक है, तो इस तरीके से इसको मार्क किया जाता है, फिर इसको एक्सकेवेट कर लिया जाता है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये ट्रेंचेज आपके लिए नहीं है, इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए है वो है, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टिम्बरिंग ऑफ ट्रेंचेस। अब आप बोलोगे टिम्बरिंग ऑफ ट्रेंचेस क्या है। देखिए, जब भी हम किसी ग्राउंड को एक्सकेवेट करते हैं फाउंडेशन के लिए, तो क्या होता है, सराउंडिंग में क्या होता है, सॉफ्ट सॉइल होता है। सॉफ्ट सॉइल होने की वजह से वो सॉइल क्या होता है, गिरता जाता है नीचे। ठीक है ना, फॉल होते जाता है। तो इसको बचाने बार बार हमको फिर रिमूव करना पड़ता है, तो इसको रोकने के लिए हम करते हैं टिम्बरिंग ऑफ ट्रेंचेस। ठीक है, इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, टिम्बरिंग ऑफ ट्रेंचेस। क्या होता है टिम्बरिंग ऑफ ट्रेंचेस, व्हेन द डेप्थ ऑफ ट्रेंच इज लार्ज और व्हेन द सबसॉइल इज लूज, सबसॉइल मतलब उसका सराउंडिंग सॉइल, द साइड्स ऑफ ट्रेंचेस मे केव इन। ठीक है ना, द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय अडॉप्टिंग suitable method of timbering, that is called timbering of trenches। ठीक है ना, जैसे हम लोग शोरिंग भी बोलते हैं। ठीक है ना, शोरिंग और स्कैफोल्डिंग, ये लास्ट यूनिट में पूरा एक टॉपिक है इसका। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम, प्लैंक्स या बोल्ड या स्ट्रट, ये सारे क्या होता है, टेम्परेरी सपोर्ट है। इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, सॉइल को होल्ड करते हैं। जैसे आप दिख रहे हैं, ये एक तरह का वुडन, आप बोल सकते हो प्लैंक है। ठीक है ना, इस तरीके से हम ये देखिए, वुडन यहाँ पे एक लेग है और स्ट्रट बोल सकते हैं उसको आप। इस तरीके से इसको होल्ड करके रख रहा है किसको, इस सॉइल फिर क्या होगा, यहाँ पे नीचे की तरफ नहीं आएगा, गिरेगा नहीं। तो ये सॉइल को रोकने के लिए जब हम इस तरीके की अरेंजमेंट को यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं टिम्बरिंग ऑफ ट्रेंचेस। ठीक है, इसमें जो पहला मेथड है वो है स्टे ब्रेसिंग। ये एग्जांपल है स्टे ब्रेसिंग का। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, दिस मेथड इज यूज फॉर सपोर्टिंग साइड्स और बेंच इन एक्सकेवेटेड फेयरली फर्म सॉइल। इसमें थोड़ा सा ठीक ठाक सॉइल होता है, बहुत ज़्यादा लूज नहीं होता है। और ये कब यूज़ करते हैं, जब एक्सकेवेशन 2 मीटर 2 मीटर तक की हो। ठीक है ना, इसमें क्या करते हैं हम, दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ प्लेसिंग वर्टिकल शीट्स, ये वर्टिकल शीट्स है और इसको पोलिंग ही बोलते हैं। इसमें दो बोर्ड अपोजिट होते हैं ईच अदर। देखिए, बोर्ड अपोजिट ईच अदर अगेंस्ट टू वॉल्स। ठीक है ना, और इसको होल्ड करने के लिए यहाँ पे स्ट्रट प्रोवाइड करते हैं। देखो इस तरीके से स्ट्रट है, दो स्ट्रट है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक तरह का प्लैंक हो गया वर्टिकल अपोजिट साइड में, और एक प्लैंक एक तरह का स्ट्रट हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये कब यूज़ करेंगे, जब 2 मीटर तक के फाउंडेशन की डेप्थ है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है, ये प्लैंक वगैरह का साइज है, ये आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज बॉक्स शीटिंग।
इसमें क्या होता है, जब सॉइल बहुत लूज हो, जैसे कि इमेज में आप देखोगे, अगर सॉइल बहुत ज़्यादा लूज है, बहुत ज़्यादा गिर रहा है, फॉल हो रहा है बार बार, तो एक पूरा ही एरिया हम पूरा एरिया में टिम्बरिंग करते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही प्लैंक, जैसे कि उसमें ये फर्स्ट प्लैंक था बस स्टेब रेजिंग में, इसमें क्या होता है पूरा एरिया कवर करते हैं। और ये जो पूरा अरेंजमेंट है, ठीक है ना, वर्टिकल शीटिंग और ये स्ट्रट का, इसको बोलते हैं बॉक्स शीटिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं हम बॉक्स शूटिंग, सॉरी बॉक्स शीटिंग। दिस मेथड इज अडॉप्टेड इन लूज सॉइल व्हेन द डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन इज मोर देन और ऑलमोस्ट 4 मीटर, ठीक है ना, नॉट मोर देन 4 मीटर, ऑलमोस्ट 4 मीटर के आसपास। ये पूरा एक बॉक्स का अरेंजमेंट है, इसलिए हम इसको बोलते हैं बॉक्स शीटिंग। ठीक है, इसको हम इसलिए बोलते हैं बॉक्स शीटिंग। और ये कहाँ यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा लूज सॉइल है वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज वर्टिकल शीटिंग। देखिए, मैं आपको स्पीड से बता रहा हूँ, इसमें आपको थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वर्टिकल शीटिंग में क्या होता है, देखो यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जैसे कि एक्सकेवेशन बहुत डीप है ना, जब यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक्सकेवेशन करना है, अब आपके पास इतने प्लैंक तो अवेलेबल नहीं है इतने डेप्थ के, और बार बार हमको उसको रिमूव करना पड़ेगा, प्रॉब्लम आएगी उसमें। तो हम क्या करते हैं, जिसकी एक्चुअल डेप्थ इसकी इतनी है फाउंडेशन की, लेकिन हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वाइडर इसको एक्सकेवेट करेंगे, ताकि ऊपर भी प्लैंक सेट हो सके, फिर एक प्लेटफॉर्म बन जाए, और नीचे भी प्लैंक सेट हो सके। ठीक है ना, ये कब करते हैं हम, जब फाउंडेशन की डेप्थ बहुत ज़्यादा है। दिस सिस्टम इज अडॉप्टेड फॉर डीप ट्रेंचेस, जब 10 मीटर से ज़्यादा डेप्थ है। ठीक है ना, दिस मेथड इज सिमिलर टू बॉक्स शीटिंग एक्सेप्ट दैट द एक्सकवेशन इज कैरिड आउट इन स्टेजेस। ठीक है ना, इसमें क्या करते हैं, हम स्टेजेस पे करते हैं। जैसे कि हम इतना लंबा एक्सकेवेट करेंगे, उसको रिमूव करने में प्रॉब्लम होगी सॉइल को, तो हम क्या करते हैं, एक्चुअल विड्थ इतनी है फाउंडेशन की, बट हम थोड़ा सा वाइड एक स्टेज पे एक डेप्थ पे एक्सकेवेट करते हैं, फिर यहाँ पे एक स्टेज बन जाएगा, 2 स्टेज बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से काम करता है, इसको बोलते हैं वर्टिकल शीटिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज रनर सिस्टम। रनर सिस्टम जो है, देखो यहाँ पे रनर सिस्टम में जब लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है, जैसे कि एग्जांपल ले लेंगे हम इसका। ठीक है, जैसे कि ये पूरा रनर सिस्टम है, इसमें बहुत बड़े बड़े ट्रेंचेस है, ठीक है ना, लंबे लंबे ट्रेंचेस है। इसमें हम यूज़ करते हैं वो हमारा, इसमें जो लंबे लंबे अगर है तो हम इसमें रनर सिस्टम यूज़ करते हैं कंटिन्यूस। इसमें दिस सिस्टम इज यूज फॉर एक्सट्रीमली लूज एंड सॉफ्ट ग्राउंड विच इज नीड्स इमीडिएट सपोर्ट एज एक्सकेवेशन प्रोग्रेस। दिस सिस्टम इज सिमिलर टू वर्टिकल शीटिंग एक्सेप्ट दैट द प्लेस वर्टिकल शीटिंग रनर मेड ऑफ लॉन्ग थिक वुड शीट प्लैंक इज यूज। इसमें इस तरीके से यूज़ करते हैं हम, कंटिन्यूस सपोर्ट होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इज शीट पाइलिंग। शीट पाइलिंग हम, मैंने आपको बताया था, शीट पाइल की इमेज भी बताया था पहले। इसमें एक टीन का होता है, शीट शीट का यूज़ करते हैं हम सॉइल को रोकने के लिए। ठीक है ना, लूज सॉइल है तो टीन का यूज़ करते हैं। शीट पाइल मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो ये कुछ था टिम्बरिंग और ट्रेंचेस के बारे में। नेक्स्ट इज वेरी सिंपल, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर और फ्रेम स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। ये बहुत ईजी है, मैं ऑलरेडी आपको फ्रेम और लोड बेयरिंग बता दिया हूँ, फिर भी आपको एक बार एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ। जैसे कि एक इमेज दिख रही है आपको, ठीक है, यहाँ पर लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, द सिस्टम ऑफ बिल्डिंग comprises of slab beam and load bearing wall is known as लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। ठीक है ना, इसमें जनरली क्या होता है, कॉलम्स नहीं होते। ठीक है ना, वॉल होता है और स्लैब होता है। ठीक है ना, इसमें एक्चुअली बीम्स भी नहीं होते हैं, इट इज, ठीक है ना, ये थोड़ा सा बीम्स का पार्ट भी इसमें जनरली नहीं होता है। ठीक है ना, most of the residential buildings are small size and are set up to 3 stories are generally constructed to load bearing structure। इसमें कॉलम तो होते ही नहीं है, और बीम्स भी बहुत रेयरली, इसको इसलिए मैंने मार्क किया हूँ कि बीम्स भी बहुत रेयरली यूज़ करते हैं इसमें। इसमें मैक्सिमम स्लैब, ठीक है ना, कॉलम्स इसमें बिल्कुल नहीं होते। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। इसमें पूरा लोड जो लेते हैं बीम के बाद, अगर बीम हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज बीम की भी इतनी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है ना, स्लैब भी जनरली जो है हमारा, ठीक है ना, स्लैब जनरली हम बीम पे ही रेस्ट करवाते हैं। कई दफ़ा हम फ्लैट स्लैब भी बनाते हैं इसमें, जिसमें बीम नहीं होता। तो वो लोड जो है वो किस पे आएगा, स्लैब से बीम पर, बीम के बाद सीधा वॉल ले लेती है लोड, इसलिए हम इसको बोलते हैं लोड बियरिंग स्ट्रक्चर, यानी, और इसको वॉल बियरिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा लोड जो है वो वॉल पे आता है। ठीक है ना, पूरा लोड जो है वो वॉल पे आता है, वॉल पूरा लोड लेके फिर फाउंडेशन पे ट्रांसफर करती है। इसमें बहुत टॉल बिल्डिंग हम नहीं बना सकते, इसमें स्मॉल साइज की बिल्डिंग, क्योंकि वॉल इतना लोड नहीं ले पाती। ठीक है, इसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट इसका अपोजिट है वो है फ्रेम स्ट्रक्चर। फ्रेम स्ट्रक्चर में कॉलम्स आते हैं। ठीक है ना, कॉलम जो है वो लोड को बियर करते हैं, बीम से जो लोड है वो कॉलम पे जाता है, उसमें
बीम से वॉल पे जा रहा था, ठीक है। इसमें देखिए क्या हो रहा था, एक्चुअली इसमें बीम्स वगैरह बहुत रेयरली यूज़ करते हैं, ठीक है, बीम्स भी यूज़ होते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, बीम से लोड जाता है आपके फाउंडेशन में डायरेक्ट, ठीक है। इसमें देखिए आप, ठीक है, ये बीम्स है और कॉलम होते हैं इसमें, ठीक है। क्या आप इसका फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या होगा, कॉलम होंगे, तो इस तरीके का फ्रेम बन रहा है, देखो आपको फ्रेम दिख रहा है, ठीक है ना। स्लैब लोड डालेगा बीम पर, बीम लोड डालेगा कॉलम पर, और कॉलम डालेगा इसको आपके फाउंडेशन में, ठीक है। इस तरीके से ये फ्रेम स्ट्रक्चर काम करता है। देखिए, इट इज़ अ स्ट्रक्चर कंप्राइजिंग ऑफ स्लैब resting on beams which is supported by a column network. Live load of the slab is transferred to cross beam which is in turn transferred to the main beam through rigid joint. फिर मेन बीम उसको कॉलम में डालेगा, कॉलम उसको फिर अल्टीमेटली फुटिंग पे डालेगा, ठीक है। इस तरीके से काम करता है, याद रखेंगे। डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस क्या है इसमें, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में कॉलम का यूज नहीं करते, कॉलम लोड नहीं लेगा, लोड कौन लेगा, वॉल लेगा, ठीक है ना। बीम के बाद वो वॉल पे लोड डालेगा, और इसमें क्या होता है, कॉलम होता है, वॉल लोड नहीं लेती है, ठीक है। वॉल जनरली इसमें सिर्फ हाइड करने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम, वॉल इसमें होती है बट वॉल इसमें लोड को बियर नहीं करती है, ठीक है। वॉल तो ऑफकोर्स होती है लेकिन लोड बियर नहीं करती है वॉल, ठीक है ना। इस तरीके से फ्रेम होता है। फिर क्या होगा, ये पूरा लोड कॉलम ले लेगा, और बाकी ये अंदर के एरिया को हमको छुपाना है, हाइड करना ही पड़ेगा, तो उसके लिए वॉल का काम है, ठीक है। तो ये होता है हमारा लोड बियरिंग और इसका डिफरेंस, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर ये फर्स्ट यूनिट यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। फर्स्ट यूनिट हमारा कवर हो चुका है। नेक्स्ट अब हम ब्रिक मैसनरी नेक्स्ट यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।